Hi everyone, good morning to all of you. In our today's session, we are going to start lesson number 12 from your English Reader course book, and the title of our chapter is Clean India Mission. A few days back, I have asked all the students to make a video presentation on Mission Clean India. Means what steps can be taken to make our country clean. Okay, so send your entries till Sunday evening of your videos. All right, now let's go through the lesson. Before we move on towards the reading, let's discuss the keywords of the same first. So, the first keyword is defecate. Defecate means to get rid of waste matter from the body. Second is vital. Vital means necessary and of great importance, means essential, means something that is very important. Next is eradicating, means putting an end to something, getting rid of something completely. Getting rid means chutkara pana. Next is pitfalls. Pitfalls means hidden dangers or problems. Every nook and corner, everywhere. Appalling. Appalling means shocking and unpleasant. Next is sanctity. Means the quality of being very important and deserving respect. Means to say, in short, we can say purity. Next word is hamlet. Hamlet means a very small village. वी आवर्स मतलब द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर मिडनाइट, आधी रात होने के बाद में जो कुछ घंटे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वी आवर्स. नेक्स्ट इज मैस्कॉट. मैस्कॉट मीन्स अ पर्सन, थिंग और सिंबल दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और कैंपेन. नेक्स्ट इज फेलिसिटेटेड मीन्स कॉन्ग्रेचुलेटेड. Next one is segregate, means separate, alag karna. Last but not the least one is inculcate, means to say to teach someone an idea or habit by repeated instructions until it is fixed in their mind. किसी चीज़ को किसी के दिमाग में बिठा देना बिल्कुल. So that is called inculcate. Okay. Okay, so let's move on towards the reading. Before we start the reading, let me tell you something about the Mission Clean India. Maybe you all have heard about it, Swachh Bharat Abhiyan. It is a popular mission of India, you know. And who started this? Do you know that? Our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, had started this on 2nd October 2014, called Swachh Bharat Abhiyan. And through this mission, the government of India aims to provide the primary sanitation facilities like cleaning toilets, waste disposal systems to every citizen of the country. The government has started to promote cleanliness across the countries and requested each and every citizen to take part in this abhiyan. As a part of this mission, government wants to make a growth of toilets from around about 3% to 10% in the first 5 years. It also aims to spread awareness on sanitation and hygiene. This mission divides into two phases. One is rural and the other is urban. The first phase of the mission is completed in 2019, but still the country is on its way towards the main goal. And we people also can play a vital role in this, you know. How? By keeping our surroundings clean, right? Okay, now let's move on towards the reading. There are many initiatives undertaken to clean up the environment. Initiative means बहुत सारे कदम उठाए गए हैं टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए. रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस सर्वल स्कीम्स टू इंश्योर क्लीननेस इन द कंट्री. अभी हाल ही में रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सी स्कीम्स अनाउंस की हैं टू इंश्योर
कि हर जगह पे कंट्री में पूरे देश में क्लीननेस होनी चाहिए. मैनी इंडिविजुअल्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइज क्लीननेस ड्राइव्स इन वेरियस लोकेलिटीज़. कि बहुत सारी इंडिविजुअल और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं. गवर्नमेंट के अलावा बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है इन द क्लीननेस ड्राइव्स इन वेरियस लोकेलिटीज़. अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग लोकेलिटीज़ के अंदर दे आर ऑल्सो हेल्पिंग. Let us read about some of the success stories of cleanup drives in India. So in this lesson we are going to read the stories of some cleanup drives in India जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है हमारी कंट्री को क्लीन अप करने में. Access to safe drinking water and proper sanitation systems are basic necessities for our health and well-being. कि जो बिल्कुल मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका होना एंड प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम और हाइजीनिक सिस्टम जो है वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे अच्छे के लिए. हाउएवर इंडिया फेसेस मैनी चैलेंजेस इन द प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर. कि हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है इन प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर पब्लिक को प्रोवाइड करने में. सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट. वाइल इन अर्बन इंडिया, अर्बन इज़ शहरी एंड रूरल ग्रामीण. सो अर्बन इंडिया के अंदर जो शहरी भारत है 90% ऑफ रेजिडेंट्स हैव एक्सेस ऑफ टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़. कि 90% अर्बन इंडिया में जो रेजिडेंट्स हैं उनके पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का एक्सेस है. बट इन द रूरल इंडिया ओनली 39% पीपल हैव इट. बट रूरल एरिया मीन्स गाँव के अंदर 39% लोगों के पास ही अच्छे पानी का, हाइजीन्स का एक्सेस हो पाता है. मैनी पीपल स्टिल यूज़ ओपन ग्राउंड्स एंड फील्ड्स टू डेफिकेट. कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ओपन ग्राउंड्स और खेतों में डेफिकेट मीन्स टू गो फॉर बीइंग फ्रेश, मीन्स टू गो टॉयलेट जाना. तो अभी भी विलेजेस के अंदर बहुत से लोग हैं जो ओपन ग्राउंड्स और फील्ड्स में टॉयलेट जाते हैं. Therefore, with an aim to strengthen healthcare and provide sanitation access to millions of Indians, the Government of India launched the Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission on 2nd October 2014 with the vision of Clean India by 2019. तो इसीलिए अपनी इस एम को, जो एम उन्होंने सोचा है उसको स्ट्रेंथन हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड सैनिटेशन की, हर एक इंसान को हमने सैनिटेशन देना है, एक्सेस टू मिलियन ऑफ इंडियंस. द गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, और वीकेंड से क्लीन इंडिया मिशन. कब स्टार्ट किया था? 2 अक्टूबर 2014 को ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी विद द विजन ऑफ क्लीन इंडिया, ताकि वो क्या कर सकें 2019 तक. मतलब उन्होंने किया भी है, अर्बन एरिया में काफ़ी हद तक वो इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, बट रूरल एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं लैकिंग है. द स्वच्छ भारत अभियान इज़ अ कैंपेन. स्वच्छ भारत अभियान जो है वो एक कैंपेन है, अभियान है दैट एम्स टू क्लीन अप द स्ट्रीट, जिसका एम है गलियों को साफ करना, रोड्स को साफ करना एंड ऑल पब्लिक प्लेसेस इन द सिटीज़ एंड टाउन्स. और सिटीज़ और टाउन्स और रूरल एरियाज़ में जितने भी प्लेसेस हैं उन सबको क्लीन करना. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू एंड ओपन डेफिकेशंस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड पब्लिक टॉयलेट्स. मेन जो इस मिशन का मतलब इस कैंपेन का जो मेन मिशन है वो है एंड ओपन डेफिकेशन, कि लोग जो ओपन में टॉयलेट जाते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना थ्रू द कंस्ट्रक्शन. और कैसे ख़त्म होगा? थ्रू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट करके ऑफ हाउस होल्ड एंड पब्लिक टॉयलेट्स बना के और घरों में टॉयलेट्स बना करके. सिंस इट्स लॉन्च मोर देन 12 मिलियन टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरियाज सो फार. तो कहते अभी तक जब से ये कैंपेन लॉन्च हुआ है उसके बाद से राउंड अबाउट 12 मिलियन टॉयलेट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं अब तक. कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, गाँव में. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव जॉइंड दिस मिशन एंड आर कंट्रीब्यूटिंग इन वेरियस वेज टू क्लीननेस ड्राइव. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं हैव जॉइंड द मिशन, लोगों ने इस मिशन को ज्वाइन किया है और दूसरे लोगों को अवेयर किया है, आर कंट्रीब्यूटिंग, अपना सहयोग दे रहे हैं इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीक़ों से, टू क्लीननेस ड्राइव. Let us read some inspiring stories related to it. तो अभी हम कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ेंगे जिन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टू मेक आवर इंडिया क्लीन. गॉड्स ओन गार्डन.
मेलानोंग एज अ स्मॉल विलेज इन मेघालय, मेघालय के अंदर ये एक स्मॉल विलेज है मेलानोंग, अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टेट कैपिटल, जो कि 80 किलोमीटर स्टेट कैपिटल से की डिस्टेंस पे है, शिलोंग, शिलोंग से. इट इज़ सो स्पॉटलेस एंड प्रेस्टीन दैट इज़ ऑफन कॉल्ड द गोड्स ऑन गार्डन. इट इज़ सो स्पॉटलेस, कहते ये इतना स्पॉटलेस है और इतना पुराना है, प्रेस्टीन मीन्स ओल्ड, दैट इज़ ऑफन कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है इस एरिया को, गोड्स ऑन गार्डन. इट वॉन द स्टेटस ऑफ बीइंग द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया इन 2003. तो 2003 में एशिया में इन्होंने स्टेटस जीता था कि ये जो है सबसे, पूरे एशिया के अंदर सबसे क्लीनेस्ट विलेज है. Not only the village clean with bamboo baskets outside every house to prevent littering on the streets, but it is also a completely plastic free zone. कहते कि ये जो एरिया है ये प्लास्टिक फ्री है, यहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता. प्रिवेंट मतलब स्टॉप लिटरिंग, मतलब गंदगी, जो कूड़ा होता है. बाम्बू बास्केट्स विद बाम्बू, इन्होंने बाम्बू की बास्केट्स बनाई हुई हैं और वो हर घर के बाहर रखी हुई हैं टू प्रिवेंट लिटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ताकि जो कूड़ा करकट है वो गलियों में ना बिखेरा जाए. मीन्स जो जितने भी पासर बाइज होंगे वो अपना जितना भी गार्बेज है वो उस बास्केट के अंदर ही थ्रो करें. हर घर के बाहर एक बाम्बू बास्केट रखी हुई है. बट इट इज़ ऑल्सो ए कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री जोन, ये एक प्लास्टिक फ्री जोन भी है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है. ब्यूटिफुल गार्डन्स डोट द फेंसेज ऑफ द स्ट्रीट्स एंड ब्राइट फ्लावर्स लेंड टू द ओवरऑल ब्यूटी ऑफ द लैंड. सी किस तरीके से इन्होंने फेंसेस, बाम्बू के फेंसेस लगा करके गार्डन्स बनाए हुए हैं. Then beautiful gardens, this is done, and